Good morning, students. In the last video of class 11th accountancy, we discussed some special entries like bad debts recovered, outstanding expenses, prepaid expenses, depreciation, interest on capital, and interest on drawing. Today, we will discuss a practical problem related to some special entries which are discussed in the previous videos. The question is past general entries for the following. Number 1, received rupees 2000 from Subhash which were written off as a bad debts in the previous year. So 2000 रुपये का पैसा आपको सुभाष से मिला जिसे आपने पहले बैड डेब्स मान लिया था. तो यू नो वेरी वेल कि जब हम किसी पैसे को पहले बैड डेब्स मान लेते हैं वो पैसा बाद में हमें रिकवर हो जाता है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ बैड डेब्स रिकवर्ड. सो इन दिस सिचुएशन द एंट्री विल बी पास बैड कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्स रिकवर्ड. And the narration is cash received from Subhash previously written off as bad debts. The amount is 2000 and 2000. The second entry is salary due to clerk rupees 5000. So you know very well due to clerk, and you know very well any expenses which are due but not paid, it is known as outstanding expenses. And in this situation the entry will be passed expenses account debit to outstanding expenses, and here is the expenses the salary. So the entry will be salaries account debit to outstanding salary. The amount is 5000 and the narration is salaries due to clerk. The third part of journal entry, that is out of the rent paid this year rupees 1000 related to the next year. The meaning is prepaid. You know, any expenses which are paid in advance, any expense which are paid for the coming accounting year which are not related to the current year, it will be related to the next year. It is known as a prepaid expense. And you know very well what is the entry for prepaid expense. Prepaid expense account debit to expense. So the rent is an expense. So in this situation the entry will be passed prepaid rent account debit to rent, that is 1000 and 1000, and this narration is rent paid in advance. The fourth one is provide 10% depreciation of furniture costing 5000 का फर्नीचर है, उस पर 10% का डेप्रीशिएशन है. सो डेप्रीशिएशन की अमाउंट क्या होगी 5000 इंटू 10%, दैट इज़ 500. सो अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन इज 500, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड सेकंड, व्हाट इज द एंट्री रिलेटेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, एंड हियर इज द एसेट्स मीनिंग इज अ फर्नीचर. सो द एंट्री विल बी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, दैट इज फर्नीचर. ओके. And the narration is depreciation provided on furniture. The amount is 500 and 500. The fourth entry is provide 12% interest on capital amounted to rupees 1 lakh. You know what is the amount of capital is 1 lakh, and for the amount of interest, that is 12%, that is 12,000. So the amount of interest on capital is 12,000, and entry will be interest on capital account debit to capital, which are already discussed in the previous video. When firm provided an interest on the proprietor's capital, so in this situation interest on capital account debit to capital. So in this situation the entry will be interest on capital account debit to capital, that amount is 12,000, and the narration is interest provided on capital. The next one is charge interest on drawing rupees 800. You know, when any proprietor withdraws some amount for the personal use, so it will be termed as a drawing, and you know very well firm charge interest on this drawing. So in this situation the entry will be passed drawing account debit to interest on drawing. Okay, so interest on drawing is the income for the firm, so the entry will be drawing account debit to interest on drawing. The amount is 800. So the total of journal entry, that is 21,300. So it is a solution of practical problem which are already given as a homework in the previous video. So I hope ki maximum student can solve this solution. Now we will move to the next topic of today's topic. Today's topic is some special transaction relating to the goods. यानी कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो गुड्स से रिलेटेड होते हैं, जहाँ पे हम गुड्स का इनफ्लो एंड आउटफ्लो करते हैं फॉर द फर्म. सो इन दिस सिचुएशन में सबसे पहला ट्रांजेक्शन आता है ड्राइंग इन गुड्स. समटाइम्स अ प्रोप्राइटर विथड्रॉ गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़. कभी कभी क्या होता है, ओनर जो होता है फर्म से कैश पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ ना करके बल्कि गुड्स क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है. सो इस सिचुएशन में
हम एंट्री क्या पास करते हैं, ड्राइंग तो डेबिट होगा ही होगा, बट कैश की जगह आप परचेस क्रेडिट हो जाएगा। ओके, सो इफ एनी प्रोप्राइटर विदड्रॉ some goods from the business for personal use, so it will be treated as drawing in goods. Okay, so in this situation the entry will be passed purchase account debit, drawing account debit to purchase, sorry, drawing account debit to purchase, the narration is goods taken for personal use. Okay, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व किया हुआ है कि अगर हम कोई भी गुड्स फर्म से विड्रॉ करते हैं, जैसे चैरिटी के लिए अगर हम गुड्स देते हैं, तो यू नो वेरी वेल चैरिटी के लिए हम गुड्स देते हैं तो वहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होता, क्योंकि हम चैरिटी के भी प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं करते। सो उसी तरह से जब भी हम गुड्स को प्राइवेटली पर्पस के लिए ओनर निकालता है तो उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन ऐड नहीं होता है। जैसे अगर आप ही किसी बिजनेस के ओनर होंगे और अपनी पर्सनल पर्पस के लिए अपनी फर्म से गुड्स ले रहे होंगे, तो आप उसको सेल्स प्राइस पे कभी नहीं लोगे, आप उसको हमेशा उसकी कॉस्ट प्राइस पे लोगे। दैट्स वाई सेल्स अकाउंट क्रेडिट ना होकर परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। इसके लिए नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। परचेज अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन द नेट अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ द बिजनेस इज रिड्यूस। सेल्स अकाउंट शुड नॉट बी क्रेडिटेड सिंस द सेल्स हैज नॉट टेकन प्लेस। ऑल्सो व्हेन द गुड्स गो आउट फॉर द बिजनेस एट कॉस्ट प्राइस, परचेज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड एंड नॉट सेल्स अकाउंट। यानी जब भी हम गुड्स को फर्म के बाहर भेजते हैं, चाहे वो चैरिटी के फॉर्म में हो, चाहे वो ड्राइंग के फॉर्म में हो, तो यहाँ पे सेल्स मायने नहीं रखता, क्योंकि हम यहाँ पे गुड्स को बेच नहीं रहे हैं बट कि गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द सम पर्पस, चाहे तो वो ओनर के पर्पस के लिए हो, चाहे वो चैरिटी के लिए हो, चाहे फॉर एनी अदर पर्पस के लिए हो। सो यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रिएट करते हैं। इसलिए इस पूरे जर्नल एंट्री का आज का टॉपिक है सम स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द गुड्स। ओके, सो if we or any proprietor withdraw the goods from the business for the personal use, so in this situation drawing account debit to goods, that is purchase. The next one is goods given away is charity. Charity is an expense of the business. As such, charity account will be debited when goods are going out of the business at cost price. Hence, purchase account reduced to extent of, and as such, purchase account will be credited. The entry will be charity account debit to purchase. यानी जब फर्म का ओनर क्या होता है, अपने गुड्स को यानी अपने स्टॉक को एज अ चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सपोज़ आप स्टेशनरी का बिजनेस है आपका, ओके, और आपने बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के बाल आश्रम में गए या आप अनाथालय में गए और बच्चों को अपने स्टेशनरी को एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आप उसको चैरिटी बोलोगे ना, उसको सेल्स तो बोलोगे नहीं। क्या आप गुड्स सेल कर रहे हो? नहीं सर, यहाँ पे मैं अपने स्टेशनरी को क्या कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट कर रहा हूँ, जिसे हम लोग चैरिटी भी कहते हैं। सो इन दिस सिचुएशन चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज होगा, ना कि सेल्स हो। ये अब थोड़ा माइंड में क्लियर हो रहा होगा कि जब हम कोई चीज़, जब गुड्स को हम आउटफ्लो करते हैं यानी बिजनेस से बाहर भेजते हैं, बट उसमें सेल्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी प्रॉफिट का कोई क्वेश्चन नहीं होता कि हम प्रॉफिट पे बेच रहे हैं कि लॉस पे बेच रहे हैं। सो इन दिस सिचुएशन में सेल्स अकाउंट को क्रिएट नहीं करते। सेल्स को हम तभी क्रिएट करते हैं जब गुड्स को हम सेल कर रहे हो। अगर हम गुड्स को प्राइवेट पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहे हों, चैरिटी के लिए दे रहे हों, तो वहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रिएट नहीं होता, बल्कि वहाँ खुद परचेस अकाउंट ही क्रेडिट हो जाता है। सो आपके मन में जो डाउट था या मन में जो प्रश्न था कि सर परचेस तो डेबिट होता है, परचेस क्रेडिट क्यों होता है, तो परचेस कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे परचेस को हम लोग क्रेडिट करते हैं। द थर्ड वन इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। Sometimes the goods are distributed as free sample to the potential buyer in order to promote sales. As such, free sample can be treated as an expense on advertisement. आपको पता होगा जब कोई कंपनी नई नई लॉन्च होती है मार्केट में, तो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए मार्केट में फ्री सैंपल लोगों को बांटती है, ठीक है। तो जब भी वो फ्री सैंपल में बांट रही है तो इसका मतलब उसमें वो कोई सेल्स का उसका इंटेंशन तो है नहीं, प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन तो है नहीं। सो इस सिचुएशन में भी ये इसके लिए खर्चा तो है, इट इज़ एन एक्सपेंस, बट किस विच काइंड ऑफ एक्सपेंस, इट इज़ एक्सपेंस रिलेटेड टू द एडवर्टाइजमेंट। सो इन दिस सिचुएशन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ओके, सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा सर? 3 चीज़ें पढ़ा। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, सो इन दिस सिचुएशन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। Goods distributed as charity, charity account debit to purchase. Goods distributed as free sample, advertisement expense account debit to purchase. Now we will move to the loss of goods by thefts or loss by fire. You know very well, आपके बिजनेस में गुड्स होता है, वो गुड्स कभी कभी चोरी हो जाता है या फिर फायर से जल जाता है। सो इस सिचुएशन में आपको लॉस हो जाता है।
सो यहाँ पे आप गुड्स तो की वैल्यू कम होगी ना, परचेस की वैल्यू कम होगी ना, सेल्स तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज इन दिस सिचुएशन, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। अगर गुड्स थेफ्ट के थ्रू थेफ्ट के कारण कम हो गया है तो लॉस बाई थेफ्ट डेबिट करेंगे। अगर आग लग जाने के कारण गुड्स की वैल्यू कम हो गई है, सो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस लिखेंगे। सो आज जो हम पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां हम परचेस को क्रेडिट भी करते हैं। मोस्ट ऑफ दिस सिचुएशन में परचेस डेबिट होता है, क्योंकि परचेस का मतलब होता है सामान खरीदना। बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है जहां परचेस को हम क्रेडिट भी करते हैं, क्योंकि वहां पर हम परचेस की वैल्यू को डिक्लाइन करते हैं ड्यू टू द एनी रीज़न। चाहे ओनर अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए निकाल लें, उसे चैरिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सैंपल के एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या फिर वो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाए फायर से, या फिर थेफ्ट हो जाए उस गुड्स का। सो इन दिस सिचुएशन में हम परचेस को क्रेडिट भी करते हैं। ओके, कभी कभी ये होता है जब आप गुड्स लॉस्ट होता है बाय फायर के थ्रू, तो आप अपने गुड्स का इंश्योरेंस भी कराए रहते हैं। सो ये नेक्स्ट एंट्री उससे रिलेटेड है। इन केस ऑफ गुड्स वेयर इंश्योर्ड, अगर गुड्स इंश्योर्ड होता है, सो इस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। इफ द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस, अगर पूरा पैसा मिल जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। पूरा पैसा मिल गया, जैसे 10,000 का गुड्स लॉस्ट हुआ तो आप क्या लिखोगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस 10,000, और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा का पूरा 10,000 रुपये दे दिया। सो आपको कोई लॉस तो हुआ नहीं, लेकिन 10,000 की जगह आपको कितना दे दिया, सिर्फ 7,000 थी। यानी इफ़ द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट एडमिट फुल क्लेम, यानी 10,000 रुपये का लॉस हुआ था, बट आपको कितना दिया, सिर्फ 7,000, तो 3,000 लॉस हो गया। तो इन दिस सिचुएशन बैंक अकाउंट डेबिट 7,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,000 टू इंश्योरेंस कंपनी 10,000, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से मिलना कितना चाहिए था, 10,000। सामान कितने का जला था, 10,000 का। सो ये सिचुएशन है कि अगर पूरा पैसा मिल जाएगा तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अगर कुछ कम पैसा मिलेगा, डज नॉट एडमिट फुल क्लेम, सो इन दिस सिचुएशन बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम और इंश्योरेंस कंपनी। ओके, so now we will move to the some important practical problem. Pass journal entry for the following: proprietor withdraw for his personal use cash 2,000 and goods worth 1,000। तो proprietor ने पर्सनल यूज़ के लिए कितना पैसा निकाला, 2,000 का कैश निकाला और 1,000 का गुड्स। सो टोटल ड्राइंग कितनी हुई, 3,000। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश 2,000 टू परचेस 1,000। तो एंट्री आप देख लो खुद ही, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेस 3,000, 2,000, 1,000, and narration is cash and goods taken away for personal use. The second one, goods for rupees 5,000 were given as a charity, sales price 6,000। सेल्स प्राइस से कोई मतलब है नहीं यार, चैरिटी पे कोई सामान दे रहे हैं, 6,000 रुपये का सामान हम 5,000 में दे रहे हैं, या 5,000 में भी नहीं देते हैं। चैरिटी का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका गुड्स कितने का गया, 5,000 का, आपको 6,000 से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है। मैं बार बार बता रहा हूँ, अपने दिमाग में रख लीजिए उस चीज़ों कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे हम परचेस को क्रेडिट करते हैं, और परचेस अपनी कॉस्ट प्राइस पे क्रेडिट होता है, ना कि सेल्स प्राइस पे क्रेडिट होता है। सो अगर हम चैरिटी पे कोई सामान दे रहे हैं, कोई गुड्स दे रहे हैं, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस होगा, एंड द वैल्यू इज 5,000। ओके, द नेक्स्ट, गुड्स वॉट 2,500 वेर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। सो आप फ्री सैम्पल में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करो। सो इन दिस सिचुएशन advertisement expense account debit to purchase, the amount is 2,500, and here it is the solution. Advertisements expense account debit to purchase 2,500 goods distributed as free sample. Yes sir. Next, goods worth rupees 5,000 and cash rupees 2,000 were stolen by employee। आप देखिए इसमें क्या हुआ, 5,000 रुपये का गुड्स और 2,000 रुपये का कैश एक एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया। चोरी मतलब लॉस बाई थेफ्ट। तो टोटल लॉस बाई थेफ्ट कितना हुआ, 7,000। कितने का गुड्स किया, 5,000, यानी परचेस कितने का क्रेडिट होगा, 5,000 का। कैश कितने का क्रेडिट होगा, 2,000 का। द एंट्री विल बी लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट 7,000 टू परचेस 5,000 टू कैश 2,000। द नरेशन गुड्स एंड कैश स्टोलन बाई एन एम्प्लॉय। ओके, अब आते हैं इस पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये देखिए ध्यान से। गुड्स वर्थ रुपीज़ 10,000 वेर डिस्ट्रॉयड बाई फायर
10,000 रुपये का गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस 10,000। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर 60%। इंश्योरेंस कंपनी से केवल कितना पैसा मिला, 60%। यानी इंश्योरेंस कंपनी ने से आपने उसका क्या कराया था, इंश्योरेंस कराया हुआ था। तो पहली एंट्री तो एकदम क्लियर है, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस 10,000। सेकंड, आपने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया था, तो उसके लिए आप क्या एंट्री करते हो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई फायर, दैट इज 10,000। ये दो एंट्री पहले क्लियर है आपके। इंश्योरेंस कराया है तो दूसरी वाली एंट्री होगी ये वाली, नहीं तो नहीं होगी। इंश्योरेंस तो हमने कराया, सो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस दैट इज 10,000। सेकंड, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई फायर दैट इज 10,000, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी लोडेड विद द इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि आपने इंश्योरेंस उसका कराया हुआ है। तीसरी बात, क्या पूरा पैसा मिल रहा है कि कम पैसा मिल रहा है, तो इन दिस सिचुएशन आपको सिर्फ कितना मिल रहा है, 60% पैसा मिल रहा है। 10,000 का 60% पैसा आपको मिल रहा है, 40% पैसा नहीं मिल रहा। सो द नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ 4,000, टोटल कितना मिलना चाहिए 10,000, यानी 10,000 में से सिर्फ 6,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिला, 4,000 नहीं मिला। सो जितना नहीं मिलता उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डाल देते हैं, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। सो इन दिस सिचुएशन बैंक अकाउंट डेबिट, PL अकाउंट डेबिट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। सो आपको दिमाग में तीन चीज़ें रखनी है कि इफ एनी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, so in this situation the entry will be loss by fire account debit to purchase. Second, if company takes the insurance against these fire, so the entry will be insurance company account debit to loss by fire. Number third, अगर पूरा पैसा मिल गया, is the full amount recovered from the insurance company, so entry will be bank account debit to insurance company. If partially amount recovered from the insurance company, so in this situation bank account debit, profit and loss account debit to insurance company. अब आपके मन में आ रहा होगा सर ज़्यादा नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिलेगा। या तो जितने का लॉस हुआ है उतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है, उससे कम देती है, उससे ज़्यादा नहीं देती। सो या तो पूरा पैसा मिलेगा, 10 का 10,000 मिलता, या तो 10 का 6,000 जैसे मिला, या तो 7,000 मिलता, या तो 8,000 मिलता। ओके, और उसके बाद हम लोग पूरे जनरल का टोटल कर देंगे। सो आई होप कि हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ के जो स्पेशल टर्म्स से स्पेशल जर्नल एंट्री लाइक बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रीशिएशन रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को समझने की कोशिश की। आफ्टर दैट इन टुडेज़ वीडियो हम लोगों ने सम स्पेशल जर्नल एंट्री रिलेटेड टू द परचेज, रिलेटेड टू द गुड्स, क्योंकि हम लोग कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे गुड्स को हम लोग एज यूज़ करते हैं। सो इस सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल ड्राइंग इन गुड्स, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट। सो इस सिचुएशन को आज हम लोग ने पूरी क्लियरिटी से डिस्कशन करने की कोशिश की। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद दिला दूँ विच आर ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यू नो वेरी वेल व्हाट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द रिकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स। व्हेन वी रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ द एसेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, you know they are basically 3 cost included in the cost of the any assets. The first one is purchase cost, second one is a transportation cost, third one is a installation cost, and any other cost which are using to preparing the assets. यानी जब भी हम किसी assets को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो हम सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देते हैं कि उस एसेट्स को परचेस करने में, इंस्टॉल करने के लिए, एज वेल एज ट्रांसपोर्ट करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारी मशीनरी की कॉस्ट डिसाइड करने में हेल्पफुल होते हैं। इससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल दिया था। सपोज़ अगर आपने एक एसी खरीदी इस गर्मी के सीज़न में, सपोज़ द परचेस कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एसी इज़ 50,000, फिर 1,000 रुपीज़ आपने उसके इंस्टॉलेशन में पे किया, 1,000 रुपीज़ आपने उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया। द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसी इज़ 52,000, नॉट इज़ अ 50,000।
यानी जब भी हम किसी एसेट्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो उस एसेट्स के परचेस कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऑल द एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन इट। सो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कॉस्ट कॉन्सेप्ट को रिलेट करता है। यानी जब हम जनरल एंट्री पास करते हैं तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि जब कोई मशीनरी हो या कोई बिल्डिंग हो तो बिल्डिंग और मशीनरी का इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। अब बात उठती है मशीनरी की, तो मशीनरी में इंस्टॉलेशन कॉस्ट इनकर्ड होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड होता है, तो विच इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। इन केस ऑफ द बिल्डिंग, यू नो वेरी वेल, बिल्डिंग बनाने के लिए हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बालू की ज़रूरत पड़ती है। तो सच काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर सकते हैं। सो the cost of the raw material uses in the construction of the building is the part of the cost of the building. So इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Machinery and building are the assets of the business. As such, any expenditure incurred on the carriage and installation of the machinery, such as freight, transit expenses, installation expenses, wages paid for the installation, etc. It is termed as capital expenditure and it is debited to the machinery account. यानी जब भी हम किसी मशीनरी को खरीदते हैं तो उस मशीनरी पे कई तरह के कैरेज, उस मशीनरी का इंस्टॉलेशन जैसे फ्रेट, इंस्टॉलेशन या इंस्टॉलेशन के लिए दिया गया वेजेस, सारा कुछ हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह इनकर्ट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं। इन द प्रीवियस वीडियो में हमने बताया व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर रिलेटेड टू द परचेज ऑफ एनी एसेट्स, एंड वेयर इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एनी एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड टू द फेस द डे टू डे एक्सपेंसेस इन द बिजनेस। अगर हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं अपने गुड्स एंड स्टॉक के लिए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। वहीं अगर हम कोई मशीनरी खरीदते हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, ऑल द एक्सपेंडिचर विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसको हम अलग से अकाउंट में डेबिट ना करके बल्कि उस पर्टिकुलर एसेट्स के अकाउंट में डेबिट करते हैं। Similarly, any expenditure incurred for the construction of a building, such as the purchase of material and payment of wages, are also treated as capital expenditure and as such debited to the building account. यानी कि अगर हम दो बातें ध्यान में रखें मशीनरी और बिल्डिंग के लिए, तो मशीनरी का इंस्टॉलेशन कॉस्ट, परचेस कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, all this are part of the machinery cost, so the machinery account is debited instead of installation cost and transportation cost. And in case of the building, you know, there are various kind of expenditure in the construction of the building, like a purchase of material, payment of wages to the labor. So in this situation we debited to the building account instead of material or wages account. On the other hand, अगर हम लास्ट लाइन इस पर डिस्कस करें, however repair charges incurred on an assets which is already appear in the books are debited to the repair account. ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी हम किसी एसेट्स को खरीदते हैं और उस पर हम ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बियर करते हैं तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट मानते हैं। लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई बिल्डिंग है, पहले से कोई मशीनरी ऑलरेडी अवेलेबल है और उसका आप रिपेयरिंग कराते हैं, उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहते हैं, उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, क्योंकि वो आपकी एसेट्स या बिल्डिंग को या फिर मशीनरी की एफिशिएंसी को मेंटेन रखता है, ना कि इंक्रीज़ कर सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपने कोई बाइक खरीदी और बाइक का मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली आप उसकी सर्विसिंग कराते हैं, तो सर्विसिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रिपेयरिंग। सो रिपेयर कॉस्ट related to the already acquired assets will be treated as a revenue expenditure, and in this situation we debited the repair account instead of building or machinery account. So इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके सारे कॉन्सेप्ट को और ईजी करेगा। द क्वेश्चन इज generalize the following items in the books of Radha Kamal giving suitable narration. The number 1, bought goods from Nilesh for cash 5,000 are also paid for 100 for their carriage. यहाँ हम एसेट्स नहीं खरीद रहे हैं। एसेट्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक बिल्डिंग एंड मशीनरी, जस्ट लाइक अ नॉन करंट एसेट्स। बट यहाँ पे हम लोग क्या खरीद रहे हैं, गुड्स। जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं और उस पर जो भी कैरेज पे करते हैं विच इज़ टर्म्ड एज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये रूल तभी एप्लीकेबल होता है जब हम लोग नॉन करंट एसेट्स की बात करते हैं। बट इन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन वी इनकर्ड द
कैरेज ऑन द गुड्स, नॉट ऑन द नॉन करेंट एसेट्स. सो इन दिस सिचुएशन जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो क्या डेबिट करते हैं? परचेस. और रिपेयर कैरेज जो पे करें वो तो रिपेयर सेपरेट एक्सपेंसेस है, तो परचेस अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश. So the first solution of the transaction is a purchase account debit, carriage account debit to cash. 5,000 for the purchase, 100 for the carriage, and total cash outflow for the business is 5,100. The second, paid to सीता 965 in full settlement of dues. यानी हमें सीता को 1,000 रुपीज़ देना था, लेकिन मैंने उसको कितना रुपये दिया? 965 दिया. तो खुश हो गए ना? हाँ सर. सो उस केस में आपको क्या मिला? डिस्काउंट मिला. यानी देना था आपको 1,000, यानी सीता विल बी डेबिटेड बाई 1,000, बट यू पेड ओनली 965 एंड डिस्काउंट रिसिव्ड इज 35. इन दिस सिचुएशन सीता इज अ रिसीवर, सो शी इज डेबिटेड. कैश इज आउटफ्लो फॉर द बिजनेस from the business, so it will be credited, and discount received is the income for the business, so it will be credited. Then third transaction, purchase a machinery for cash 30,000 and paid 2,500 in cash as wages on its installation. यहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल होगा. ये थोड़ा सा आपको, आपने मशीन खरीदी 30,000 रुपीज़ की और उस पर 2,500 इंस्टॉलेशन का चार्ज पे किया. So you know very well it is an capital expenditure. So in this situation we debited the machinery account instead of installation cost. So simple सा इसका solution आपके सामने है. Machinery account debit to cash. The total amount is 32,500. ये बात आपको इस टॉपिक में समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब हम कोई नॉन करेंट एसेट्स खरीदते हैं और उस पर जो भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बियर करते हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ द एसेट्स. सो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट जो है वो 2,500 से एडिशनली डेबिट हुई है, वो ऑलरेडी मशीनरी अकाउंट में ऐड कर दी जाती है. सो द नरेशन इज मशीनरी परचेज फॉर रुपीज़ 30,000 एंड वेजेस फॉर 2,500 पेड फॉर इंस्टॉलेशन. द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ब्रिक्स फॉर रुपीज़ 1,50,000 and timber for rupees 1 lakh purchase for the construction of building and payment was made by check. तो देखिए पहले आपने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिक्स खरीदा और टिम्बर खरीदा. द टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज 2,50,000. तो ये पूरा 2,50,000 रुपये वो बिल्डिंग का पार्ट है. सो द बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,50,000 और आपने पेमेंट किससे किया? चेक से. तो यू नो वेरी वेल जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं तो कौन से अकाउंट क्रेडिट करते हैं? हु इज अ गिवर? बैंक. वाई? बिकॉज जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं तो हम उसका पेमेंट नहीं करते हैं, बल्कि उसका पेमेंट कौन करता है? बैंक के पे करता है. सो इन दिस सिचुएशन द एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक. सॉल्यूशन देख लीजिए. ब्रिक्स फॉर रुपीज़ 1,50,000, timber for rupees 1 lakh, purchase for the construction of buildings. So the building account debit to bank 2,50,000, 2,50,000. Now the fifth transaction, purchase an old machinery for rupees 10,000 and spend 500 on its carriage and 2,000 for immediate repair. आपने एक ओल्ड मशीनरी खरीदी ना, ऐसा तो नहीं है आपके पास पहले से वो मशीनरी थी. नो सर. तो अगर आपने सेकेंड हैंड मशीनरी भी खरीदी या पुरानी मशीनरी भी खरीदी है तो उस पर भी अगर आप कोई रिपेयरिंग चार्जेस या फिर कैरेज कॉस्ट पे करते हैं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एसेट्स. सो मशीनरी का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 500 प्लस 2,000. द टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज 12,500. Then entry will be machinery account debit to cash. ओके. मशीन नई हो या पुरानी हो, अगर आप उसको खरीद रहे हैं तो उस पर जो भी ट्रांसपोर्टेशन या इंस्टॉलेशन या रिपेयरिंग चार्ज पेयर कर रहे हैं वो सब एसेट्स का पार्ट होगी. बट आपको ये चीज़ याद रखनी है अपने दिमाग में कि अगर हम कोई एसेट्स पहले से हमारे पास पड़ी हुई है उस पर अगर हम रिपेयरिंग चार्ज बियर कर रहे हैं तो उसे हम सेपरेटली डील करेंगे, यानी उसके लिए अलग से रिपेयर अकाउंट डेबिट करेंगे. और ये रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब हम कोई नॉन करेंट एसेट्स परचेस करेंगे, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, फर्नीचर एंड फिटिंग्स वगैरह वगैरह. ओके. नाउ वी विल मूव टू द लास्ट जर्नल एंट्री ऑफ दिस वीडियो, दैट इज पेड रुपीज़ 250 फॉर द रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर. यानी इसमें आप ऑफिस फर्नीचर खरीद नहीं रहो बट ऑफिस फर्नीचर के लिए का प्रिपेयर करा रहे हो, यानी 250 रुपये का प्रिपेयरिंग कॉस्ट पेयर कर रहे हो. यानी आपके पास पहले से वो फर्नीचर अवेलेबल है, अभी तो आप उसको तुरंत खरीद नहीं रहे हो. सो इन दिस सिचुएशन आपको क्या करना है? सर इस सिचुएशन में इट इज़ नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो आपको क्या करना होगा? सिंपली रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश. सॉल्यूशन देख लीजिए. रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, द अमाउंट इज 250. एंड यू नो वेरी वेल जब भी सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो आप सारा डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट ऐड कर देते हो एंड द राइट डाउन
total rupees 3,01,350 in the debit column and 3,01,350 in the credit column. So I hope कि आज हम लोगों ने कई सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस किया. द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो इज स्पेशल एंट्रीज रिलेटेड टू द गुड्स, यानी ऑल दोज सिचुएशन इन विच वी क्रेडिटेड द परचेज अकाउंट इंस्टीड ऑफ द डेबिटेड. यानी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ हम परचेस को क्रेडिट करते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि परचेस क्रेडिट नहीं होता, परचेस तो डेबिट होता है अकॉर्डिंग टू द रूल. बट समटाइम्स कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ परचेस क्रेडिट होता है, जिसको हम लोगों ने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया. वो सिचुएशन कौन कौन सी होती है एक बार रिवाइज कर लेते हैं. व्हेन वी withdrawn the goods from the business for the personal use, goods given away as a charity, goods distributed as a free sample, goods lost by fire or lost by theft. और उसके बाद हम लोगों ने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया any expenditure on the installation of machinery and the erection of the building is the part of the assets like machinery and the building, and it will be debited in the particular machinery and building account, not in the ट्रांसपोर्टेशन और रिपेयरिंग चार्जेस. बट आपको दो बातें याद रखनी है. पहली बात है कि ये रूल किस एसेट्स के केस में एप्लीकेबल होता है, इन केस ऑफ नॉन करंट एसेट्स. और दूसरी बात कि अगर हम कोई गुड्स परचेस करते हैं, ठीक है, तो उस केसेस में जो भी हम कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बियर करते हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज सेपरेटली. यानी उसको हम उसके सेपरेट इंस्टॉलेशन चार्जेस से, रिपेयरिंग चार्जेस से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से बियर करते हैं. और एक बात और भी छूट रही है, वो ये कि अगर कोई एसेट्स ऑलरेडी हमने परचेस की हुई है और उसके रिगार्डिंग हम कोई इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग चार्ज बियर करते हैं, तो वो अलग ही तरह ट्रीट होता है. यानी इट विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेटली डिस्कस्ड एज अ रिपेयरिंग चार्जेस. सो आई होप कि आज का जो वीडियो था वो आपको जो भी मैसेज, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, वो सफिशिएंट रूप में आप तक सर्कुलेट की गई होगी. बट इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डाउट्स और सजेशन regarding this topic, so please ask me in the WhatsApp classes as well as WhatsApp groups as well as in the online classes. So आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.